Hi everyone, welcome to my series Zindagi Ka Safar. We are here to listen, learn and grow. In our life we come up with so many business ideas, but there is a difference in having an idea and how to convert those ideas into a successful business. It really requires a lot of hard work, dedication, some sleepless nights and of course, few failures before you succeed. हमारे लास्ट एपिसोड में हमने आपको एक फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया था और आपको बताया था कि कैसे एक फैमिली सपोर्ट आपके सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलाने जा रहे हैं मिस्टर साहिल गुप्ता से, जो कि एक पब्लिशिंग हाउस चला रहे हैं VNS पब्लिशर्स के नाम से। सो हमारे साथ है मिस्टर साहिल गुप्ता VNS पब्लिशर्स से। सो मिलते हैं मिस्टर साहिल गुप्ता से और जानते हैं उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। हाउ आर यू साहिल? Doing good, and very thank you for having me here on this show. It's a pleasure being here. Okay, so let's start our questions. Sure. Okay, so because we wanted to know more about you, about your business and about your personal and professional life. So Sahil, my first question to you is, you are from engineering background Right. and you have done MBA. आप चाहते तो एक MNC में जॉब कर सकते थे, तो इस बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई? So इसके लिए शायद थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा. So मेरी जो पूरी फैमिली है, for almost last 70 years, we have been into book publishing line. So my grandfather started from a very small shop. एक छोटी सी दुकान खारी बौली में start किया था with my grandfather and his brothers. And this is, I'm talking about early 60s. And then in early 70s, they all thought कि there is a need कि market में अच्छी quality books, मतलब इंडिया में पार्टीशन के बाद जितना भी बुक्स वगैरह जो भी यहाँ पर पढ़ी जाती थी सब बाहर से इंपोर्ट होती थी, तो बहुत ज़्यादा पब्लिशिंग का यहाँ पर नहीं था. एंड माई ग्रैंड फादर वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड ही लव्ड रीडिंग, सो दे स्टार्टेड पब्लिशिंग. माई फादर फॉलोड इन हिज फुटस्टेप्स and from a very humble beginning in those early 70s, I think the tide changed when my father, along with my grandfather and my Taujis, it has been a family business, and they went and signed Kapil Dev in 1983 after the World Cup victory. And I think from then on we never looked back. And शुरू से ही मतलब from a young age, coming from an intellectual family background, there was a lot of बहुत thrust था कि education, knowledge तो बहुत था. My mother was a topper in her time, and she was always like कि नहीं पढ़ाई करनी है. And my entire household is full of books, right from comics and those Reader's Digest in those earlier days and all that. So उसके बाद हमने जब शुरू करा, I always followed in the footsteps of one of my मामा जीज. मॉम हमें स्टोरीज बताती थी कि वो IIT टॉपर थे, एंड शुरू से डिसाइडेड था कि बस बीटेक ही करना है. कमिंग फ्रॉम अ हम्बल लाइक अ बनिया बैकग्राउंड, इट वाज लाइक या तो इंजीनियर्स या डॉक्टर्स, बट मेरा बड़ा क्लियर था कि इंजीनियरिंग करनी है. सो डिड माई बीटेक, एंड मेरे फादर एंड मदर ऑलवेज बहुत सपोर्टिव थे. जो भी आपको करना है, उन्होंने कभी नहीं बोला कि पब्लिशिंग में आना है या फैमिली बिजनेस में आना है, नथिंग. एंड आई गॉट लैंडेड अ वेरी गुड जॉब इन माई फाइनल ईयर विद बिग MNC कंपनी. एंड देन वो कहते हैं ना कि समटाइम्स टाइड्स जस्ट चेंज. सडनली वन डे माई फादर केम अप टू मी एंड ही सेड कि नहीं, जॉब वॉब तो कुछ नहीं हो पाएगा, काम में बहुत ज़रूरत है. उन्होंने कभी कुछ शेयर नहीं करा हमसे, एंड आई वाज लाइक ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई नहीं. एंड बस फिर आई जॉइंड माई फैमिली बिजनेस, एंड डूइंग MBA इज़ अ स्टोरी, इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. आई जॉइंड माई फैमिली बिजनेस, देन वी गॉट टू नो कि like we have to start from scratch and everything. It was a big family business, lot of people, so there were a lot of differences, and suddenly one day it was like we all have to start from scratch. Never got an opportunity. MBA तो कभी सोचा भी नहीं था, because उस वक्त तो ये था कि काम establish करना है. And from then on I think कुछ मेरे friends थे जिन्होंने encourage किया, कुछ मैं कहूँगा peer pressure भी था. हमारे यहाँ ये होता है कि इंडिया में somehow, especially in my kind of family, like I said, intellectuals and everything, so मुझे भी मन था MBA करूँ, बट अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि कहीं कॉलेज ज्वाइन करके करना चाहता था. आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी इन वन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी दैट टाइम, बट जा नहीं सकते थे बिकॉज काम एस्टैब्लिश करना था. सो आई इवेंचुअली डिड माई MBA फ्रॉम सिम्बायोसिस थ्रू डिस्टेंस लर्निंग. सो दैट्स व्हेन दैट हैपेंड, एंड मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, मतलब टू डू BTech एंड देन MBA एंड लाइक डूइंग दिस फैमिली बिजनेस. एंड सो या इट्स MBA करने के बाद आपने बिजनेस ज्वाइन किया. So my second question to you is, what kind of books you are publishing? As I know that
these are not study books, right? So what kind of books you are publishing? हम जो पब्लिश करते हैं, अगेन लाइक यू राइटली सेड, हम स्टडी बुक्स पब्लिश नहीं करते. When we started, in fact, since always, even with my parent company, पुस्तक महल के टाइम पे जब सब साथ थे, हम एकेडमिक बुक्स नहीं पब्लिश करते, हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बुक्स पब्लिश नहीं करते, इनफैक्ट हम फिक्शन भी पब्लिश नहीं करते थे. When I started on my own and with my father in 2010 and 2011, we wanted to publish for the youth. We realized that a major population of India is in the vicinity of 25 years of age group. So our target audience was people in the age group of, I would say, like around 7-8 years से लेके around 35-40 years तक की age group की target audience थी. And we used to publish a lot of, there was a lot of focus on skill development, self-help, health, alternative therapies. So mainly ऐसी books जो लोगों को inspire करती है. Yes, a lot of inspirational books. We realized that India at that time, and I'm talking about these 2010, 11, 12, like we were beginning to, really become a force to reckon with on a global level. And I realized there was a big populace जिनको ज़रूरत थी, who wanted to know more about international leaders, read inspirational content, do something, create their own startups. And हमारा aim ये था, so हम बहुत सारे subjects publish करते हैं, like we publish almost more than 100 subjects. We publish across 7 different languages, and currently I have a catalog size of more than 1,000 different books. And the best part is a very small percentage of that is academic books. So हम करते हैं, we did a book on autism. We again something for the masses. So these are very interesting subjects. These are not typical subjects कि हाँ आप study books. We rarely do run-of-the-mill books. Each of our book is created by an expert, very point precise. And again, there जो भी चीज़ हमें लगता है ना कि लोगों को ज़रूरत है मार्केट में, जो पढ़ना चाहते हैं, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल है, उसको बेटर किया जा सकता है. दैट इज़ व्हाट वी ट्राई एंड डू. सो ओवर लास्ट 10 years in my journey, this is exactly what our aim has always been, to bring out the quality books in general trade line. So एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि एक्चुअली ये इंटरव्यू करने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे पब्लिशिंग बिजनेस का ए भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे लगता था कि आपके माइंड में कुछ आता होगा, आप उसको लिखते होंगे और फिर जाके पब्लिशिंग हाउस को दे देते होंगे. तो मुझे ये जानना है कि व्हाट इज़ योर बिजनेस मॉडल. आई मीन अगर मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ हैं और मैं आपके पास आती हूँ कि साहिल मेरे माइंड में ये आइडियाज़ है, चाहे वो मेरी लाइफ की जर्नी होगी या फिर कुछ स्टार्टअप आइडियाज़ या जितना भी मैंने अभी तक सीखा है, मैं आपके पास आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि क्या आप इसके ऊपर एक बुक लिख पाएंगे. आई मीन आई हैवंट रिटन एनीथिंग, इट्स जस्ट इन माई माइंड एंड आई कम टू यू कि प्लीज राइट a book for me. Right. So how can you help me? So coming to the model, so publishing as a model has been in the world for almost like many centuries now, and the original idea of having a publisher, like देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई कुछ भी सोच सकता है, कोई कुछ भी लिख भी सकता है, कोई कुछ भी पब्लिश भी कर सकता है, मार्केट में लेकर आ भी सकता है. पब्लिशर की ज़रूरत क्यों होती है? आज कोई भी इंसान है, उसके पास कोई आइडिया है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उस नॉलेज को पेन डाउन करना चाहते हैं ताकि हमारी जो आगे वाली जनरेशन हैं उसको रीड कर सकें. सो उसके लिए नीड होती है बुक्स की. अब अगर हर कोई अपने थॉट्स को किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी लैंग्वेज में लिखेगा और हर चीज़ को मार्केट में ले आएगा, देयर इज़ नोबडी टू चेक कि उस इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी क्या है. देयर इज़ नो टेम्पलेट, देयर इज़ नो फॉर्मेट. हर इंसान अपने हिसाब से कागज़ों पे, पर्चों पे लिखेगा, अपनी अपनी चीज़ें करेगा. द नीड फॉर पब्लिशर, एंड ये मेरी एक, लेकिन माई ऑनेस्ट ओपिनियन एज दिस है, ये मेरी ओपिनियन ये है कि द नीड फॉर पब्लिशर इज, जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, सो एक हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो एज अ पब्लिशर आई फील कि मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हर पब्लिशर किसी ना किसी लेवल पे है. जब कोई इंसान हमारे पास कोई बुक लेकर आता है, कोई थॉट लेकर आता है, उसको पेन डाउन करता है, समटाइम उसके पास एक बड़ा रफ सा ड्राफ्ट होता है, समटाइम उसके पास बड़ा वेल मेड रिटन आर्टिकल या बुक होता है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द नीड फॉर पब्लिशर इज कि उस कॉन्सेप्ट को, उस थॉट को एक इवेंचुअल शेप देकर एक फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना और फिर उसको लोगों तक पहुंचाना. सो आई फील वी आर अ मीडियम. हम एक माध्यम है जिसको यूज करके लोग अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं. तो आपकी टीम उसकी थॉट्स को समझती है कि वो क्या चाहता है, हाँ, क्या लिखना चाहता है. सो ये होता है. सो हर अलग अलग पब्लिशर अलग अलग तरीके से काम करते हैं. जैसे एज अ पब्लिशर जो हम चीज़ करते हैं, हमारे पास ऐसे ऑथर्स आते हैं जिनके पास सिर्फ थॉट होता है, कुछ भी लिखा नहीं होता उन्होंने, और हम उनको पूरा गाइड करते हैं कि आप उस थॉट को किस तरीके से एक बुक की शेप दे सकते हो.
सो हम उनको कंसल्ट करते हैं, हम उनको गाइड करते हैं। जब वो कोई चीज़ लिख लेते हैं या कई बार हम उनको अपने कॉपी एडिटर्स प्रोवाइड करते हैं जो उनको हेल्प करते हैं लिखने में। देखिए, हर किसी के पास जो आइडिया होता है, हर कोई लिखने में अच्छा नहीं होता है। किसी इंसान को नॉलेज बहुत होती है बट वो लिखने में अच्छा नहीं होता। कोई इंसान लिखने में अच्छा होता है, उसको नॉलेज नहीं होती है। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि उस थॉट को एक पेन डाउन करके, या अब तो सब कंप्यूटर होने लग गया है, तो उसको एक शेप देना। फिर वो हमारे पास आती है, वी डू द कॉन्ट्रैक्ट्स करने के बाद हमारे अपने इन हाउस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स के हैं हमारे पास। अब ऑब्वियसली हम सारे टॉपिक्स इन हाउस कवर नहीं कर सकते हैं। सो देन वी हैव अ वाइड नेटवर्क ऑफ प्रोफेसर्स, टीचर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो डिपेंडिंग अपॉन किसने किस टॉपिक पे बुक लिखी है, एंड वंस वी फील दैट वो जो स्टोरी है, वो कॉन्सेप्ट है, वो सही है, और वो उस इंफॉर्मेशन को हम रिसर्च करते हैं कि अच्छा, इट्स अ वैलिड पॉइंट, इट्स अ गुड थॉट, इट नीड्स टू बी आउट देयर, देन वी गेट इट रेक्टिफाइड, वी गेट इट चेक्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ जी, और हो भी सकता है, बट देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन, लाइक आई सेड, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी ने कोई चीज़ गलत लिखी है, विच इज़ फैक्चुअली रॉन्ग, और मैं उस चीज़ को मार्केट में ले आऊँ, अगर हर पब्लिशर ये प्रिंट करना शुरू कर दे कि 2+2 5 है, तो द एंटायर पॉपुलेस विल स्टार्ट रीडिंग 2+2 5। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि 2+2 is 4 and that it needs to be published as 4. So there are two kind of, there might be somebody who might say कि नहीं, 2+2 is not 4, it's 5, right? कोई कहेगा 2+2 is 6. So अगर हर कोई अपनी अपनी चीज़ लेकर आएगा तो उसकी एक पॉसिबल नहीं है, वो फॉर्मेट नहीं हो पाएगा। So हम कोई भी चीज़ हमारे पास आती है, पब्लिशर के सबसे इंपॉर्टेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि हम उसकी ऑथेंटिसिटी और इस चीज़ को फैक्चुअली चेक करते हैं। उसके बाद हम इसको इम्प्रूव करते हैं, उस पर बिल्ड करते हैं, ऑथर से कोलैबोरेट करते हैं। आजकल डिजिटल का बहुत हो गया है, सो मल्टीमीडिया कंटेंट वीव करते हैं इफ़ नीडेड, एंड देन वी डू कवर डिजाइनिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, वी प्रिंट, एंड दैट इज हाउ अ फाइनल बुक टेक्स द शेप। एंड मुझे ये जानना था कि जो ऑथर आपके पास आता है, उसको मनी कहाँ से आता है? मतलब अगर कोई आता है, उसको ये नहीं पता, तो आप उसको बताते हैं कि आपका इतना रेवेन्यू, इतना आपका होगा, तो वो कैसे काम करता है? बिजनेस मॉडल क्या? सो ये आई टेल यू समथिंग। सो द एंटायर पब्लिशिंग बिजनेस, एंड मतलब मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि पब्लिशिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। दिस इज समथिंग ही हैज़ ऑलवेज सेड, एंड जब हम छोटे थे तो हम उनको क्वेश्चन करते थे, नोबल क्या मतलब है, मतलब इसका क्या मतलब है? देखिए, पब्लिशिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी बहुत ज़्यादा है। तो जब कोई ऑथर हमारे पास आता है, एंड मैं हमेशा इस चीज़ को वैल्यू करता हूँ, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑफ अ स्टोरी जो होती है वो हमारे ऑथर्स होते हैं, क्योंकि दे आर द वंस हु हैव द नॉलेज, दे आर द वंस हु हैव क्रिएटेड द कंटेंट, वी आर जस्ट अ मीन्स। सो हमारे पास वो आते हैं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट सेंड करते हैं। अब इसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कई ऑथर्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं सर मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, दिस इज़ माई मैटर, आप हमें व्हाट कैन यू पे मी फॉर दिस स्क्रिप्ट, एंड हमें लगता है कि वो बुक, देयर इज़ अ कमर्शियल वायबिलिटी टू दैट प्रोडक्ट, वेयर वी फील दैट हम इस बुक को सेल कर सकते हैं, इसकी मार्केट में एक नीड है। सो हम कई बार ऑथर्स को एक वन टाइम इनिशियल सम पे कर देते हैं। दैट इज़ वन वे, one model which we call a lump sum model of payment. There is the other model of payment wherein the author comes to us and they say कि so this is the project, and sometimes there is very strong sense of ownership जो हम खुद बहुत recommend करते हैं कि होनी चाहिए, because आपने एक product लिखा है, create करा है। That is where there is a royalty model wherein on an annual basis या semi-annual basis हम उनको एक पूरा statement भेजते हैं which states कि your product has sold X number of copies in Y amount of time. एंड आप उसको उनको थोड़ा कम, हाँ जी, एंड उसके बेस पे वी गिव देम अ रॉयल्टी, एंड दैट जो टर्म्स वेरी करते हैं, 5% रॉयल्टी भी होती है, 15% भी होती है, सो दैट वेरीज। सो साहिल, आपकी प्रोफेशनल जर्नी में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, कुछ डिसीजंस होंगे जो आपने गलत लिए होंगे, कोई डिसीजन जो आई थिंक आने वाली जनरेशन को भी ये पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे डिसीजंस थे जो मुझे लगता है गलत थे। एक्चुअली जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारा एक फैमिली बिजनेस था और हमने उसे ज्वाइन करा। उसके बाद सडनली बिकॉज ऑफ being a big family and mutual discussion and everything, suddenly we realized कि we are everybody's parting ways. So in 2011, me with my father, we had to start from scratch. बहुत डिफ़िकल्ट था जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ, बिकॉज मेरे फादर ने हमेशा ना बैकग्राउंड में काम करा। उनको आदत नहीं थी कि लोगों से पूछें, लोग उनको जाने। वो हमेशा लाइक होता है ना बिहाइंड द सीन्स, उनका वो था, ऑलवेज इन्वॉल्व विद द प्रोडक्शन ऑफ द बुक्स, मेकिंग श्योर कि बुक्स की क्वालिटी बहुत टॉप नॉच है। ही वॉज नेवर इन द लाइमलाइट। तो जब सब कुछ अलग अलग हो गया एंड ही वॉज वेरी स्कैर्ड, आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज हार्डली 22, एंड वी रियलाइज कि देयर वॉज अ डर्थ ऑफ नॉलेज
बिकॉज वो एक सर्टन फील्ड में हमेशा उनकी बहुत एक्सपर्टीज़ थी. तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, बहुत लिमिटेड स्टाफ था. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सम ऑफ माई टीम मेम्बर्स जो इतने बड़े सेटअप को छोड़ के दे फॉलोड इन माई फादर्स फुटस्टेप्स बिकॉज दे बिलीव्ड इन माई फादर, बिकॉज दे वर्कड इन माई फादर. वो आज भी हमारे साथ हैं. सो वो बहुत अच्छा था. मैं कहूँगा मैंने तो गिर गिर के सीखा था. बहुत लिमिटेड गाइडेंस थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी बुक्स ऐसी पब्लिश करी जिनमें एरर्स थे शुरू में. वी लिटरली हैड टू कॉल दोज बुक्स बैक. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे करे जो मुझे लगते थे बहुत अपीलिंग हैं, लेकिन वी रियलाइज़ कि कमर्शियली सेल नहीं होते. सो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस. नेटवर्क नहीं था, जिसे किसी को हायर करना है, रखना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की नॉलेज नहीं थी. मेरे फादर को लीगैलिटीज़ का नहीं पता था. सो आई टुक हेल्प वेर एवर पॉसिबल. आई यूज्ड टू गो आउट इन द मार्केट. फील्ड में जाते थे, लेके एक बैग टांग के मार्केट में जाके बुक सेल कर रहे हैं. रिमेंबर ट्रैवलिंग टू मुंबई. एंड बजट्स नहीं होते थे बिकॉज स्टार्टअप था, नया नया शुरू किया था. तो ये नहीं था कि किसी की फैंसी 5 स्टार 4 स्टार में रुक रहे हैं. इनफैक्ट 2 स्टार होता था, गेस्ट हाउसेज वगैरह में रुकते थे. और पूरा इंडिया ट्रैवल करा है मैंने. एंड मेरे फादर हमेशा कहते थे, और मुझे आज भी वाली बात याद है, कहते हैं जब तक गलती नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं. गिव इट योर बेस्ट शॉट. दैट इज़ व्हाट आई डिड. एंड इट वाज जस्ट मी एंड माई फादर. मेरे फादर चाहते थे, इनफैक्ट माई ब्रदर वॉज वेरी यंग, ही वॉज स्टिल इन हिज कॉलेज डेज. तो वी थॉट कि उसको भी शायद ले आए, ही माइट बी एबल टू हेल्प. बट देन लगा कि नहीं, पढ़ाई नहीं छुड़वाएंगे. एंड इट वॉज अ गुड कॉल. नाउ ही इज़ वर्किंग विद अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी. सो बहुत सारी गलतियाँ करी. एंड आई थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी. कोई भी बिजनेस जब तक आप फेलियर्स नहीं आते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते. सो और एक और क्वेश्चन है कि हम आई थिंक बहुत सारी प्रोफेशनल बातें हो चुकी है. सो टेल मी अबाउट योर पर्सनल लाइफ. कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए. सो आई स्टे विद माई पेरेंट्स, मदर एंड फादर. वी पुट अप इन Delhi. I got married 6 years back, so I have a lovely wife. For me, when we were very small, I feel my father and mother have been very encouraging. I feel my mother was the backbone of our family. Very strong, doesn't say much, and my father is always like busy with work and everything. So when I got married 6 years back, and मेरी वाइफ अभी भी मुझसे कंप्लेन करती है, I was a real workaholic. बिकॉज शुरू से यही था कि ऑफिस सेटअप करना एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक आई नेवर गिव हर द टाइम दैट आई शुड हैव. आई रिग्रेट दैट एंड आई थिंक आई हैव करेक्टेड दैट क्वाइट अ बिट. सो या, एंड coming from a very humble background, like my forefathers originally have been from Haryana side, and my wife is a homemaker, very nice, loves to travel. In fact, because मैंने बहुत young join करा था office and everything, तो मुझे लगता है कि when I got married, and sometimes it happens कि आप बहुत busy हो जाते हो, sometimes you become little dull. So मुझे लगता है कि my wife really helped me with that. मतलब she never complained, she always encouraged me. She's like, she loves to travel, she loves to go around, loves to shop, she likes to do everything with me. She's a wonderful cook. I love to eat, she loves to cook. Okay. So we do that, we do everything together. And I think we stay with our parents, and I think that's the best thing that anybody can do. Like family से बड़ा मेरे ख्याल कुछ नहीं है. मतलब मेरी जो last 12-13 years की 15 years की जो जर्नी रही है, मैंने देखा है कि लाइफ में कितना भी कुछ डिफिकल्ट हो, अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है, योर पेरेंट्स आर विद यू, योर वाइफ इज़ विद यू, योर पार्टनर इज़ विद यू, यू कैन रियली पुल थ्रू एवरीथिंग इन लाइफ. सो साहिल, आप बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारे आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, स्टार्टअप आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं. आप कोई भी मैसेज उनको देना चाहेंगे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या कोई भी एक बात आप उनको बोलना चाहते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से ये है कि वॉट इज़ इट दैट यू वॉन्ट टू डू. एवरीथिंग हैज़ टू स्टार्ट from the need. If you feel there is a need and you have an idea, and that idea stems from the fact that you eventually have to solve a problem, that is the right way forward. अगर आपका आइडिया ये है कि मेरे पास एक स्टार्टअप है, मैं आइडिया इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि 4 दिन बाद मुझे किसी MNC को वो आइडिया बेच देना है, मुझे फंडिंग मिल जाएगी, आई थिंक दैट इज़ नॉट द राइट वे फॉरवर्ड. डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स. आपके पास आइडिया है, आप प्रोसीड करो, हैव फेथ इन दैट आइडिया, वर्क टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम, डोंट बी अफ्रेड टू फेल, and just keep at it. I think eventually अगर आपका विजन अच्छा है, अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है, आपकी इंटेंशंस ठीक है, sooner or later you're bound to succeed in life. So Sahil, फैमिली की बात चली रही है, तो I also wanted to congratulate on your father's birthday.
You told me Yes. it's his birthday today. Yes. It's his birthday. He just turned 61, and in fact, आपने की बात करी, he is here today, Okay. and it will be great. I mean, let's go and meet him. Yeah, of course. Brad, happy birthday! Surprise for you. You're on camera. Why? Suddenly? Yes. So Happy 60. birthday, uncle. Thank you. कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि यूथ के लिए जो है आदमी को वो हमेशा जो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ऑनेस्टली ही काम करना चाहिए। ये कि लाइफ में जो है अप्स डाउन आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी को एक हार्ड वर्किंग तरफ ही रहना चाहिए। I want to seriously add here. मतलब if after 30 years I can be half as good as he is now, genuinely, then I'll count myself like seriously. So is that. बड़े लोगों के अंदर एक अलग ही पावर होती है जो हम लोगों में हम लोग शायद हिम्मत ये पा है कि सकते हैं। शुरू से ही जैसे पब्लिशिंग में जैसे रहे हैं, ये है कि जो है ओल्ड पब्लिशर है, न्यू नेम से हमने एस्टेब्लिश से किया अपने आप को। तो ये सभी चीज देखी हुई है कि क्या क्या अप्स डाउन आते हैं, मार्केटिंग के प्रोसेस हैं, स्टाफ की भी टीम है, और बाकी एडिटोरियल्स वगैरह की भी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, और शुरू में तो लॉसेस वगैरह भी होते हैं। जो लॉसेस वगैरह होते हैं तो यही चीज आदमी को सिखाती है आगे कि मैं जो यही चीज जो बाद में फिर आदमी को अच्छा करने को प्रेरित करती है। सही बात है। So it was a great conversation with Mr. Sahil Gupta और ऐसी ही स्टार्टअप आइडियाज़ और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे।